آپ ہی لوگوں کے مسائل ہیں، ہم سب کے مسائل ہیں۔ میں پہلے پینل کو بلا لوں، دعوت دیتی ہوں میں شیما کرمانی کو۔ شیما کرمانی حیدرآباد سے آئی ہیں، ہماری مشہور ایکٹیوسٹ امر سندھو۔ نصرت شیری ہیں جو ہماری کمیشن کی چیئر ہیں۔ سیمی جمالی صاحبہ نہیں آ سکی، لیکن پروین رت یہاں پہ موجود ہے۔ پروین رت بہت بہادر لڑکی ہے جس نے ہراسمنٹ کے خلاف اسٹینڈ لیا ہے۔ آپ ان کے لیے تالیاں بجائیں۔ دے آر موسٹ ویلکم۔ آپ باہر جا سکتے ہیں، چائے پئیں، گپ لگائیں، لیکن جو سننا چاہتے ہیں ان کو سننے دیں۔ آپ میں سے کوئی مجھے بتا سکتا ہے کہ تشدد کس طرح، کیا تشدد ہوتا ہے؟ چلے پلیز، آپ لوگ تو بہت ایکٹیو ہیں نا، کوئی کھڑا ہو کے مجھے بتائیں۔ آگے جو ہے اس کا ڈسکرپشن یا جو بھی باتیں ہیں، ہمارے جو پینلسٹ یہاں بیٹھے ہیں یہ ساری وہ خواتین ہیں جن کا ان ایشوز پہ انہوں نے بہت کام کیا ہے، ان کا تجربہ بھی ہے، اور انہوں نے بہت سارے کیسز جو ہیں وہ ریزالو بھی کیے ہیں، اور ایسے کیسز بھی دیکھے ہیں جس میں ہم اگر کچھ نہیں کر سکے تو ہم بڑے دکھ اور تکلیف سے گزرے ہیں۔ اور ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں، ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آیا کبھی بھی یہ معاشرہ تشدد سے، ہراسمنٹ سے پاک ہوگا یا نہیں؟ کبھی بھی عورت یہاں پہ سیف ہوگی یا نہیں؟ اب بھی مجھے کچھ لوگوں کی باتوں کی آواز آ رہی ہے، اور ان سے میں نے کہا ہے کہ جن کو باتیں کرنا ہے وہ پلیز باہر جا سکتے۔ یہ سیشن نہیں ہوگا جب تک خاموشی نہیں ہوگی۔ پھر بھی لوگ بات کر رہے ہیں، آپ باہر جا سکتے ہیں۔ جن کو بہت ضروری بات کرنی ہے پلیز آپ جائیے باہر، اور دوسروں کو سننے دیں، ان کو ڈسٹرب نہ کریں۔ ایسے موقعوں پہ اکثر میں بہت مس کرتی ہوں، مجھے بہت یاد آتی ہیں اپنی دوست فہمیدہ ریاض، جنہوں نے، میرے خیال میں وہ پہلی شاعرہ تھی جنہوں نے تشدد کے، ہراسمنٹ کے، سیکشوالٹی کے حوالے سے عورت کے ہر نقطۂ نظر کو اجاگر کیا ہے اور بہت کھل کے بات کی ہے۔ دیکھیں، آپ لوگوں نے وہ مشہور قصہ تو سنا ہوگا نا، دنیا میں پہلی لڑائی کون سی ہوئی تھی؟ حابیل اور قابیل کی ہوئی تھی نا، یہ معلوم ہے سب کو۔ اور کیوں ہوئی تھی؟ یہ فہمیدہ کی نظم ہے کہ اقلیمہ وہ کہتی ہے کہ اس لیے ہوئی تھی کہ حابیل کہتا تھا میں اس سے شادی کروں گا، اور قابیل کہتا تھا کہ نہیں میں اس سے شادی کروں گا۔ تو اب دونوں بھائیوں میں جب جھگڑا ہوا تو ایک نے دوسرے کو مار دیا۔ فہمیدہ یہاں کہتی ہیں، وہ بہت اچھی طرح سے ڈسکرائب کرتی ہیں عورت کے بدن کو، جو اقلیمہ کا بدن تھا، جو جسم تھا، اور پھر کہتی ہیں لیکن اس کے اوپر تو ایک سر بھی تھا نا، اس میں ایک دماغ بھی تھا نا، اس کی ایک سوچ، ایک عقل بھی تھی نا۔ تو اگر خدا خود کلام کر لیتا اقلیمہ سے کہ تم ان دونوں میں سے کس سے شادی کرنا چاہتے، تو یہ جھگڑا بھی نہیں ہوتا، یہ مسئلہ بھی نہیں ہوتا، اور آج شاید کاروکاری میں عورتوں کو مارا بھی نہیں جاتا، کیونکہ وہ اپنی پسند سے شادی کرنا چاہتی ہیں۔ یہ حق ان کو مذہب نے دیا ہے، یہ حق ان کو ہمارے معاشرے نے دیا ہے، ہمارے قوانین موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی کچھ لوگ ایسے ہیں، جیسے آپ نے کچھ دن پہلے سنا تھا۔ شیما، مجھے اس بات پہ بہت دکھ ہوتا ہے کہ کیا ہم اتنے پیچھے کی طرف لوٹ گئے ہیں کہ ہم اپنی پیدا ہونے والی بچیوں کو مارتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں۔ ایک بچی کے میاں والی سے خبر آئی تھی کہ 7 دن کی بچی تھی اور گولیاں مار کے۔ آج صبح اخبار میں خبر ہے کہ کراچی کے نوائی علاقے میں ایک بچی جو 8 ہفتے کی تھی، اس کو تیز دھار آلے سے قتل کر دیا، اور جو ماں باپ یا کپل وہاں رہتا تھا وہ غائب ہے اور بچی کا گلا کٹا ہوا ہے۔
उसका नाम था ज़मीन। तो मुझे ये बताएं कि ये हम कहाँ जा रहे हैं, हमारा माशरा कहाँ जा रहा है। शीमा, मैं पूछना चाहती हूँ कि जो इस कदर इतनी वायलेंट हमारी जहनियत होती जा रही है, इतना हम नीचे गिर गए हैं, क्या मजीद हमें गिरने की गुंजाइश बाकी है और ये क्यों हो रहा है? जी अनीस, आपने बहुत सारी बहुत अच्छी चीज़ों की तरफ इशारा किया है। क्यों हो रहा है इसका जवाब आसान नहीं है, मगर जाहिर है हम सब इन चीज़ों पे गौर करते हैं, सोचते हैं और स्टेटिस्टिक्स भी जमा करते हैं और अपने गिर्द देखते भी हैं कि क्या चीज़ें हो रही हैं। एक तो मैं ये कहना चाहूँगी आप सब से कि एक खातून ने जो वायलेंस तशद्दुद की बात की, फ़र्क तशद्दुद और हैरेसमेंट की, तो मैं समझती हूँ तशद्दुद सिर्फ फिज़िकल नहीं होता, तशद्दुद बहुत मुख्तलिफ इक़साम से होता है। ज़हनी तशद्दुद भी होता है, इमोशनल तशद्दुद भी होता है, जिस्मानी तशद्दुद भी होता है और इंटेलेक्चुअल तशद्दुद भी होता है, जिसमें आपको इजाज़त नहीं मिलती बहुत सारी चीज़ों की जिस पे आपका हक होना चाहिए। अनीस ने जो बात की कि क्यों बढ़ता जा रहा है ये तशद्दुद, वो इसी वजह से बढ़ता जा रहा है कि हमारे, देखिए मैं नहीं समझती कि हमारा माशरा हक देता है। आपने कहा माशरे में भी हक है, कवानीन यकीनन है, मगर सोशल प्रेशर्स, सोशल सिस्टम्स जो हमारे यहाँ बरकरार हैं वो हमको इजाज़त नहीं देते कि हम सोच को नहीं तब्दील करेंगे और ये पॉइंट आउट नहीं करेंगे कि जो आदमी किसी औरत को हैरेस करता है वो एक क्रिमिनल है, तो क्रिमिनल पनिशमेंट उसको मिलनी चाहिए। मैं ये इसमें ऐड करना चाह रही थी कि आजकल जो 221 के अमेंडमेंट्स हैं जिसमें बात हो रही है कि क्रिमिनलाइज करना चाहिए, उसके ऊपर अभी तक इतना बहस मुबाहिसा हो रहा है कि वो बन के नहीं देता वो कानून, हालांकि वो सिर्फ ICT के लिए है। इसी तरह डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में भी जो तरामीम आई हैं उन पे भी इतनी बहस है, जहाँ सारा मसला आके इस पे रुकता है कि जहाँ औरतों के हुकूक की बात होती है। अमर सिंधु जो है, इनका बहुत काम है इस हवाले से कि लोगों ने विमेंस एक्शन फोरम हैदराबाद की तरफ से इंडिविजुअल केसेस जो लोगों के, औरतों के होते हैं वायलेंस और हरासमेंट के, वो उन्होंने बहुत हल किए हैं और हर चीज़ में, हर केस में ज़रूर इनकी किसी न किसी तरह शमूलियत होती है। तो मैं अमर से ये जानना चाहूँगी कि क्या उनका भी यही तजर्बा है, वो किस तरह से देखती हैं कि हालात औरतों के लिए कुछ बेहतर हो रहे हैं, कुछ सेफ्टी आ रही है, या हरासमेंट और वायलेंस जो है वो बढ़ रहा है? सॉरी अमर, इससे पहले कि बोले एक सेकंड का एक लेती हूँ मैं टाइम, एक स्टेटिस्टिक बताना चाहती हूँ क्योंकि आप जो बात करेंगी कि एक साल में 365 डेज होते हैं। पिछले साल 540 केसेस औरतों के रिपोर्ट किए गए हैं रेप के एक साल के अंदर। तो आप सोचें कि रोज़ाना, और ये रिपोर्टेड केसेस हैं, तो रोज़ाना कम से कम 2 से 3 औरतें रेप की जाती हैं। जी मैं आपकी इसी बात को आगे बढ़ाऊंगी, मैं इसी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगी कि जो केसेस हैं किस तरह से ज़्यादा हो रहे हैं और क्यों हो रहे हैं। अनीस ने जैसे बताया कि तकरीबन कोई 12-13 साल हो चुके हैं जो हम तशद्दुद की शिकार औरतों के साथ जुड़े हुए हैं, और जहाँ भी होता है कुछ केसेस के अंदर पर्सनली जाकर, खुद जाकर उसको देखते भी हैं और जहाँ तक हो सके वहाँ तक सज़ा भी दिलवाई जाती है। मैं आपको ये ज़रूर बताती चलूँ कि वुमेन्स एक्शन फोरम हैदराबाद की जानिब से गैंग रेप्स के कोई 3 या 4 केसेस ऐसे हैं जिसमें आप कह सकते हैं कि हमें, जिसको आप कह सकते हैं कि सक्सेस स्टोरीज हैं कि रेपिस्टों को अदालत की जानिब से सज़ा हुई, और ये 3 केसेस जो है वो हो चुके हैं। चौथे केस में
हाई कोर्ट में वो चैलेंज हो चुका है, लेकिन अभी तक जो है 20 से 25 बंदे जो है गैंग रेप से, चूंकि इसलिए ज़्यादा हैं बंदे जो है अभी तक जेल में हैं, जो मैं ये समझती हूँ कि उनके साथ कनेक्ट होना और उसको 10 साल तक एक केस को फॉलो करना और उसको सज़ा तक पहुँचाना, ये चूंकि अदालती निज़ाम इतना हमारा जो है सुस्त है कि 10 साल तक रेप का केस चले, तब तक न सिर्फ सर्वाइवर लेकिन उसके रिश्तेदार, उसका ख़ानदान पूरे उस ट्रॉमा से, अजाब से वो गुजर रहे होते हैं, इसलिए केसेस को फॉलो नहीं कर पाते। तो मैं लेकिन आपको बताना चाहती हूँ कि जो फॉलो करते हैं किसी हद तक, तो निज़ाम बहुत ख़राब हो चुका है, हमारे तसव्वुर से नहीं ज़्यादा, लेकिन वहाँ तक जो है कुछ हमारे पास इस किस्म की स्टोरीज है। दूसरी बात, हमने अब ये शुरू किया है कि गुज़िश्ता 6 माह से एवरी डे की बुनियाद पर, रोज़ाना की बुनियाद पर सिंध के अंदर किसी भी किस्म का वायलेंस, किसी भी किस्म का रैप हो, घरेलू तशद्दुद हो, ऑनर किलिंग हो या इवन सुसाइड हो, उसको हम सिंध मीडिया वॉच की नाम से वुमेन सेक्शन फोरम उसको रिपोर्ट कर रहा है। रिपोर्ट किस पे कर रहा है? हम अपने जो हमारे फेसबुक अकाउंट है जो पर्सनल है उस पर हम उसको कर रहे हैं। और मैं आपको सिर्फ एक अगर महीने की डेटा बताऊं तो आप समझ सकते हैं कि वो क्या उसकी सूरत हाल है। और जो कहा जाता है उस सूरत हाल में सिंध के अंदर, मैं अगस्त महीने की बताऊं क्योंकि हमारे पास जो डेटा है उस डेटा के अंदर 3 औरतें रोज़ाना 3 औरतें मारी जाती हैं। और ये जो डेटा आता है वो डेटा ऐसा है कि जो जंग जहाँ पर हो रही हो, अफगानिस्तान में जो जंग हुई, जो इराक में जंग हुई, उन इराक और अफगानिस्तान में मरने वाले लोगों की तादाद कम है जो सिंध के अंदर, पाकिस्तान के अंदर औरतें जो कत्ल हो रही है रोज़ाना की बुनियाद पर, उनकी तादाद ज़्यादा है। लेकिन हम उस पे सेंसिटाइज नहीं है कि उनके कत्ल घर के अंदर होते हैं, उनके जो है कातिल जो है वो कोई बाहर वाले नहीं है, उनके कातिल उनके अपने रिश्तेदार, उनका शौहर, उनका चचा, उनका देवर, उनका भाई होते हैं। मैं अगस्त के बताऊं कि अगस्त में ऑनर किलिंग के, सिर्फ ऑनर की मैं पूरी उसकी बताऊं, अगस्त 2021 में ऑनर किलिंग के 21 कत्ल, मतलब रोजाना के हिसाब से अगर आप देख लें 21 कत्ल ऑनर किलिंग के हुए हैं, 10 कत्ल जो घरेलू तशद्दुद। देखिए हम इसलिए कहते हैं घर बचाने से जान बचाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और जो औरतें घरेलू तशद्दुद बर्दाश्त करती हैं कि हम घर बचा रही हैं, वो न घर बचा पाती हैं न जान बचा पाती हैं, क्योंकि बहुत सारे अभी एनी बुलेदी का केस चल रहा है, उसके 4 बच्चे दरबदर हैं इस तरह से कि उनका शौहर जो उसका कातिल है वो भी जेल में है। अब बच्चों का भी इस तरह से गुस्सा आने आ रहा, इस तरह से घर अब वो न माँ रही न बाप रहा। तो मैं ये कहती हूँ कि घरेलू तशद्दुद को बर्दाश्त करने का मतलब ये है कि हम अपने घर वाले को लाइसेंस दे देते हैं कि जब तुम्हारा गुस्सा तुम्हारे कंट्रोल पे ना रहे तो तुम मुझे कत्ल कर सकते हो। तो इसको बर्दाश्त करना से घर बचाना नहीं, जान बचाना ज़रूरी है। माँ अगर जिंदा है तो बच्चों की हिफाजत कर सकती है, अगर मारी गई तो। फिर ये मर्डर केस है, 6 रेप केस है और सुसाइड के, क्योंकि औरतें जो मरना नहीं चाहती इस तरह, औरतें जो इस किस्म की मातहती वाली ज़िंदगी नहीं गुजार सकती, औरतें जो घर के अंदर अपना इज्जत नफ्स बरकरार नहीं रख सकती, वो औरतें जो घर के अंदर इस तरह से तजलील का शिकार हों, वो अपनी जान का, अपनी ज़िंदगी का दिया खुद बुझा देती है। 28 औरतें 1 महीने के अंदर 28 औरतों ने सुसाइड की और तकरीबन वो सब शादीशुदा औरतें, तकरीबन शादीशुदा औरतें हैं। हार्डली, क्योंकि अब जो घर हैं हमारे लिए, अब जो ये रिश्ते हैं हमारे लिए, मैं आपको बता रही हूँ, हम माने ना माने लोगों के सामने
یہ ہمارے لیے ٹارچر سیل بن چکے ہیں, عذاب گھر بن چکے ہیں. ہر عورت کے ساتھ وہ چاہے برداشت کرتی ہو, چاہے وہ چیختی ہو چلاتی ہو, جو چیخ چلا بھی نہیں سکتا, جس کو لگتا ہے کہ میری آواز بھی نہیں سنی جا سکتی, وہ عورتیں اس طرح سے سوسائڈ کرتی ہیں. کڈنیپ کے 3 کیسز ہیں. اور پھر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ان میں سے 40 کیسز ہیں, 40 کیسز جس میں وومنس ایکشن فورم نے انٹروین کیا ہے, ان کی FIR کروائی ہے کہ کم از کم, جیسے انیس نے کہا کہ کرمنلائز کیا جائے, کم از کم مانا جائے کہ ہم عورتوں کے خلاف اس قسم کا ہم جرم کرتے ہیں, لیکن سماج میں ہم جس طرح سے یہ ہے وائٹ کالر لے کر ہم عزت دار بن کر چلتے ہیں, ہم چھوٹی سی کوشش کرتے ہیں, کوئی بڑی سزا کسی کو نہیں دلوا رہے, لیکن یہ ہے کہ FIR کے بعد یہ ہوتا ہے کہ کم از کم یہ جو مجرم ہے وہ پہچانا جائے کہ یہ مجرم ہے, یہ قاتل ہے, یہ ریپسٹ ہے, اور یہ وہ بندہ ہے جس نے عورت کے خلاف جرم کیا ہے. تو یہ جو جرم ہے اور یہ عورتوں کے خلاف تشدد بڑھ کیوں رہا ہے, اب سوال یہ ہے. میں آپ کو بتا دوں کہ دنیا کے اندر جتنی بھی بڑی تبدیلیاں آئی ہیں اس میں عورت کے شعور کے اندر اضافہ آیا. پہلے جو آپ نے سیشن سنا, اس سیشن کے اندر آپ کو یہ پتا چلا ہے کہ 10 سال تک اگر کوئی پاکستان کے اندر تحریک زندہ اور جاویداں اور اپنے آواز اور اپنے نعرے کے ساتھ زندہ ہے تو وہ خواتین کی تحریک ہے, خواتین کی آواز ہے. جتنا جب دیکھیں عورت مارچ کل پرسوں میں جتنی کہ پولیس سے لے کر ریاست تک, ریاست سے لے کر گھر تک, گھر سے لے کر معاشرے تک مخالفت آتی ہے, لیکن عورتیں 5 سال سے سڑک پر اسی طرح سے نکل رہی ہیں. یہ اتنا کسی سیاسی پارٹی کے اندر بھی میں کہتی کہ جان نہیں ہے کہ وہ کر لیتے. پچھلے 10 سال سے یہ تحریک چل رہی ہے, اور چونکہ تحریک چل رہی ہے عورتوں کے اندر وہ اپنے عزت نفس والا سوال, اپنی خود مختاری والا سوال, اور اپنا وہ اپنے آپ کو فرد سمجھنے والا اور آزاد فرد سمجھنے والا شعور بیدار ہے. اب جب شعور بیدار ہے, تشدد تو ہم کہتے ہی اس کو ہے کہ تشدد ہوتا کیوں ہے. تشدد ہوتا ہے کنٹرول کرنے کے لیے. تشدد جب اس لیے جب عورتوں کا تشدد ہے, میں تھوڑی سی اس میں وضاحت کر دوں. عورت کا تشدد جو ہے وہ عام تشدد سے اس کی تعریف اس لیے مشکل ہے کہ عورت کا تشدد وہ بھی تشدد ہے کہ جب عورت کنٹرول میں ہو, کہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ فیئر آف وائلنس, کہ آپ کو تشدد کا خوف ہو. ابھی مجھ پہ تشدد نہیں ہو رہا, آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں آزاد ہوں, لیکن مجھے پتا ہے کہ میں سڑک پر جا کر اگر اس طرح سے نعرہ لگاؤں گی, اس طرح سے کپڑے پہنوں گی, اس طرح سے بات کروں گی کہ مجھ پہ تشدد ہوگا, تو مجھ پہ نہیں بھی ہو رہا تب بھی مجھ پہ یہ تشدد ہے کہ میں ان کے کسی نہ کسی کنٹرول میں ہوں. جب آپ یہ کنٹرول ضابطہ توڑتے ہیں تب تشدد ہوتا ہے, وہ چاہے گھر ہو, وہ سڑک ہو, وہ سیاست ہو. جب یہ کنٹرول, اب عورتیں خود مختار ہو گئی ہیں تو عورتیں یہ سوچتی ہیں کہ ہم آزاد ہیں, اور وہ اپنا کنٹرول, جس کو آپ کوئی بھی نام دے دے, کہ آپ اپنی زندگی پہ اپنا اختیار, اپنے جسم پہ اپنا اختیار, اپنی مرضی اپنا اختیار, اپنی شادی اپنا اختیار, اپنی روزی اپنا اختیار, جب آپ اختیار مانگتے ہیں تو آپ پر تشدد ہوتا ہے, عورتوں پر تشدد ہوتا ہے. اور یہی میں کہتی ہوں کہ یہی ہے کہ اب عورتوں میں شعور آ رہا ہے, عورتیں کلیئر کر رہی ہیں, نتیجے میں تشدد بڑھ رہا ہے. اچھا تشدد بڑھ رہا ہے, پھر اس کے ساتھ ایک اور ہے کہ عورت پر جب تشدد بڑھتا ہے تو وہ یہ ایک بندے کا نہیں بڑھتا, اس کو سماج کی طرف سے قبولیت ملنا لازم ہوتی ہے, اس لیے سماج اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. مثال کے طور پر اب اسلام آباد میں اگر مارچ نکل رہا ہے, عورت مارچ نکل رہا ہے, تو پاکستان کی پولیس کہتی ہے کہ ہمارا کوئی نہیں جاتا, لوگ یہ کر رہے ہیں. دوسری طرف سے دوسری جماعتیں آ کر یا دوسرے لوگ آ کر پرتشدد اس کو بناتے ہیں, ان کو تشدد کا شکار بناتے ہیں. تو یہ کھڑی ہو کر ہماری ریاست تماشا دیکھتی ہے, پولیس تماشا دیکھتا ہے. جب یہ پولیس, ریاست اور باقی تماشا ہی بن جائے تو تشدد بڑھے گا. پھر 7 دن کی بچی نہ 70 سال کی عورت کوئی بھی تشدد. آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ عورتوں کی عزت کو, عورتوں کی سیفٹی کو, عورتوں کی جان کو جب ریاست نہیں اون کرتی اس ملک میں, جہاں یہ پرائیویٹ آفنس کے طور پہ ٹریٹ کیا جاتا ہے
चाहे वो रेप हो या मर्डर हो, और स्टेट खुद पार्टी नहीं बनती, तो उस वक्त उस मुल्क में जाहिर है कि जब ऐसे कवानीन बने थे ज़िया-उल-हक के ज़माने में, हमने बहुत प्रोटेस्ट किया था और उसमें कुछ तब्दीली आई, लेकिन क़सास और दियत की एप्लीकेशन नहीं चेंज हुई, जिसकी वजह से ये प्राइवेट जुर्म जो है वो शुमार किए जाते हैं, स्टेट पार्टी नहीं बनती। हमारा मुतालबा ये है कि औरतों के खिलाफ जितने जराइम होते हैं उसमें स्टेट खुद पार्टी बने, क्योंकि ये रियासत का अभी से एक चीज़ और भी ऐड मैं करना चाह रही थी, वो ये कि हम कह तो रहे हैं कि तशद्दुद बढ़ गया। मैं ज़ाती तौर पे माय पर्सनल ओपिनियन इज़ कि एक्चुअली तशद्दुद नहीं बढ़ा, हाँ औरतों में ये शऊर बढ़ गया है कि अब वो आवाज़ उठाने लगी हैं उनके ऊपर जो तशद्दुद होता है उसके ऊपर, क्योंकि तशद्दुद हमेशा, क्योंकि आम हमने जो भी देहातों में और जहाँ भी हम जाते हैं हमने जो लाइफ एक्सपीरियंस देखा है औरतों का, वो ये है कि एक थप्पड़ मार दिया, एक टांग मार दी, वो एक एक्सेप्टेबल नॉर्म था सोसाइटी में। और चूंकि कोई रास्ते नहीं खुले हैं, कोई एवेन्यूज नहीं खुले हैं, इसलिए अमर अभी जो बात कर रही थी ना कि खुदकुशियाँ बढ़ रही हैं, जी खास तौर पे बिल्कुल औरतों में। नुज़रत शीरी जो है कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन सिंध का उसकी चेयरपर्सन है, उनसे मैं पूछना चाहती हूँ, नुज़रत देखो अभी तक ऐसे कवानीन मौजूद हैं जिसमें गैप्स हैं, अभी तक ये कवानीन बन गए 2010 से 2012 तक 3 साल में 5-6 कवानीन बने हैं प्रो वुमेन लॉज। पाकिस्तान कहते हैं वेल लेजिस्लेटेड कंट्री है, लेकिन यहाँ इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता, तो हमें इम्प्लीमेंटेशन के लिए कमीशन के तौर सरबराह के हिस्से से मैं आपसे पूछती हूँ कि आप क्या समझती हैं कि हमें क्या रास्ता है? देखिए बात, क्योंकि मैं आप ही के अंदर पहुँची हूँ, तो असल बात जो अभी मैंने 5वां साल है और मैंने भी देखा वो ये कि पॉलिटिकल विल भी नहीं है, लोग औरतों को आगे बढ़ता हुआ देखना भी नहीं चाहते, उनको जिंदा भी नहीं देखना चाहते। जो औरतों के लिए इदारे बनाए जाते हैं वो अधूरे बनाए जाते हैं, उसकी ह्यूमन और फाइनेंशियल रिसोर्सेज अप टू द मार्क नहीं होती। अभी हम 3-4 साल में इसी पे फोकस किए हुए हैं कि इदारा को मजबूत बनाओ, इदारा को बढ़ाओ, जिसके नतीजे में पहली दफ़ा ये हुआ कि हमने वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को हमने पहले उसमें लिया कि भाई इसको तो एक्टिव करो जो इदारा है, क्योंकि जब हम केसेस ले रहे थे और औरतें हमारी तरफ आने लगी थी, क्योंकि थोड़ी सी जानकारी थी उनको हम लोगों से जो हम कमीशन में आए हैं, तो बहुत सवाल उठ रहे थे, तो हमने कहा भाई सिस्टम होना चाहिए और एक हेल्पलाइन होना चाहिए और जो कंप्लेन सेल है उसको तो आप पूरा करें। जब आपके पास बजटरी एलोकेशन हैं, लोग औरतों को पता ही नहीं है कि वो कहाँ जाए जब इस सूरत हाल में निकले। और जो लेजिस्लेशन हुई हुई है, मैं आपको बताती हूँ, जो कानून साजी हुई है 3 साल से अमेंड करके, जिसमें आप भी उस कमेटी में रही, हैरासमेंट एट वर्क प्लेस का कानून है और डोमेस्टिक वायलेंस का एक्ट 2013, हमने क्या कुछ नहीं किया होगा, वो हर वक्त जाके लॉ डिपार्टमेंट में ही अटका रहता है। अब उसको लॉबिंग भी करते रहो, पीछे भी लगे रहो, तो हमें समझ में ये आया है कि जब तक इनकी विल नहीं होगी, औरतों के काम ऐसे ही रहेंगे, इदारे अधूरे रहेंगे। और हमने तो फिर ये तरीका इख्तियार किया कि जो अपनी जैसे इदारे हैं, जो अपनी जैसी ऑर्गेनाइजेशन है नॉन गवर्नमेंटल, हमने उनके साथ अपने आप को जोड़ा। हम इन मार्चों का हिस्सा बन रहे हैं, हम इन इदारों को अपने साथ मिला रहे हैं, जिससे हमारी बात में वजन भी हो रहा है और हम आगे इस पे जितने केसेस अगर हो रहे हैं तो उसमें जब हमने देखा, ये अमर को पता है कि जिस वक्त हम कोई केस होता है, मैं अमर के साथ फौरी तौर पे कनेक्ट हो जाती हूँ। अमर और हम मिलकर स्ट्रैटेजी प्लान करते हैं। अच्छा, इसमें ये
دیکھیں نا, وزیرہ چچڑ کا کیس آج تک چالان ہی جمع نہیں ہوا, آج تک. اور میرا خط بار بار آئی جی پولیس کو جا رہا ہے. ہم آئی جی پولیس کی بڑی تعریفیں کرتے ہیں کہ ہاں بہت سارے اچھے اقدامات بھی ہوئے ہیں, لیکن جو کیسز چالان جمع نہ ہو, جہاں جب عورت مر جائے اور ہم اس کو فالو کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے وہ کہتے ہیں وہ تو اب مر گئی, اب کیا فائدہ. یہ جو ذہنیت ہے اس کو تبدیل کرنا ہوگا. پھر غربت اتنی ہے ہمارے معاشرے میں, جو عورتیں جب مر جاتی ہیں تو ان کے گھر والے چاہتے ہیں, سمجھتے ہیں کہ چلو اس سے کچھ فائدہ تو ہو جائے گا, پیسہ آ رہا ہے. جب شیریں جوگیوں کے پاس ہم گئے اور انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ نے 10 لاکھ روپے دیے, اور وہاں حالت کیا تھی کہ وہاں ایک لڑکا جب شیریں کے پاس آیا اور وہ یہ کہہ رہا تھا کہ کچھ لوگ ملنے آنا چاہ رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے شیریں نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا میں بیمار پڑی ہوں, بخار میں پڑی ہوں, بچے بھوکے پڑے ہیں, تو آپ کیا تصویریں بنوانے کے لیے لوگوں کو ہمارے پاس لا رہے ہیں. جس پہ ہم نے یہ وزیر اعلیٰ کو لکھا ہے کہ یہ اکٹھا رقم دے کے جس کو کہ اکاؤنٹ چلانا بھی نہیں آتا, تو کیا عورتوں کو آپ ریلیف دے رہے ہیں؟ آپ ان کے بچوں کی کیا سہولت کر رہے ہیں کہ ان کی تعلیم, صحت, کھانا. تو یہ ساری چیزیں, ایک تو سسٹمیٹک چینج کی ضرورت ہے, اور یہ جو پروسیجر اتنے لمبے بنا دیے گئے ہیں, اور وہ بھی خاص طور پہ میں نے یہ بھی غور کیا اس عرصے میں ان لوگوں جو بیٹھتے کہ عورتوں کے مسئلوں کے اوپر اب لا جو ہے, جب ہم نے اس میں امینڈمنٹ تجویز کر دی کمیشن نے اور تمام اسٹیک ہولڈر کو بٹھا کے کیے ہیں, تو پھر جب لا ڈپارٹمنٹ میں کیوں 4 سال سے پڑا ہوا ہے, کیوں نہیں وہ کیبنٹ میں جا رہا ہے؟ کیبنٹ جب اپروو کرے گی تو ہی تو اسمبلی میں پاس ہوگا وہاں پہ جا کے. تو یہ جو پروسیجرل اس میں ہمیں اٹکا دیا جا رہا ہے عورتوں کو, ہمیں اس کے اوپر اب بات کرنا ہوگی. اور ایک اور بات بتاؤں کہ جب جینڈر سینسٹائزیشن کی بات ہوتی ہے افسروں کی, ابھی حال ہی میں سفر میں گئی تھی تو ایک افسر جو عورتوں کے ادارے میں کام کرتا ہے وہ بڑا فخریہ کہہ رہا تھا کہ میں نے 200 جینڈر ٹریننگ نیشنل اور انٹرنیشنل کی ہیں, اور میرے ساتھ ایک میری اسٹاف ممبر گئی تھی, وہ باڈی شیمنگ کر رہا تھا اس کی. تو میں نے کہا کہ آپ کی جو 200 ٹریننگ ہے جینڈر سینسٹائزیشن کی, یہ ہے یہ جو آپ باڈی شیمنگ کر رہے ہیں, تو پھر چپ ہو گیا. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے جو ہم کام کر رہے ہیں کہ ایک تو یہ جو ٹریننگز ہیں ان کے ماڈیول کمیشن چیک کرے گا, اور ٹریننگ ایسی نہیں ہونا ہے بھائی, ٹریننگ یہ ہونا ہے کہ عورتوں کو کس طرح ریلیف دیا جائے, عورتوں کو کس طرح سے تربیت. سب سے بات آپ نے اہم کہی ہے وہ یہ کہ ہمارے پولیس سسٹم میں اور کرمنل جسٹس سسٹم میں ریفارمز کی بہت ضرورت ہے. اس کے اوپر ایک آگے سیشن ہے. اب دیکھیں ہمارے ساتھ پروین رینز بیٹھی ہیں, میرا خیال ہے آپ لوگوں میں سے بہت سے لوگ جو اخبار پڑھتے ہیں یا ٹی وی دیکھتے ہیں وہ پروین رینز کے کیس سے واقف ہوں گے کہ یہ ہاؤس آفیسر ہیں نرسنگ اسٹاف کی, اور یہ ہوتی ہیں بے نظیر جو میڈیکل کالج ہے اس میں, اور ان کے ساتھ کیا ہوا ہے, ان کے ساتھ ان کی مدد کے لیے, حمایت کے لیے ان کے چچا کھڑے ہیں جو ایک مرد ہیں, اور میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں ایسے لوگوں کو سنانا چاہیے جو یہاں بیٹھے ہیں, جو اس کے تحت میں ہمارا ساتھ دیتے ہیں, کیونکہ آپ لوگوں کو کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ خواتین کے وائلنس کے خلاف کھڑے ہوں, اس لیے کہ یہ ظلم آپ کے ساتھی کرتے ہیں اور اس میں سارے گھر متاثر ہوتے ہیں, بچے بھی متاثر ہوتے ہیں آپ کے. تو ہمیں آپ سے بہت توقع ہے کہ آپ جیسے بہت سے ساتھی ہمارے ساتھ شریک ہوں گے. پروین سے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اگر وہ یہ بتا دیں کہ ان کے ساتھ کیا ظلم ہوا, کیا واقعہ ہوا, اور یہ کورٹ گئی ہیں, بڑی ہمت کی ہے انہوں نے, اور کورٹ میں ان کا کیس کہاں ہے, کیا ان کا چالان داخل ہو گیا ہے, جس طرح ابھی تک نظر بتا رہی ہے کہ کسی اور کا بھی چالان داخل نہیں ہوا,
श्री जोखियों का चालान भी नहीं दाखिल हुआ, उसके लिए भी कोर्ट जाना पड़ा है PM में। तो ये मुझे बता दें कि इनका क्या सिचुएशन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं वुमेन हार्ट काउंसिल वालों का मैं शुक्रिया अदा करूँगी जिन्होंने मुझे इनवाइट किया। और मैं परवीन हिंद पम्स यूनिवर्सिटी नवाबशाह जो शहीद बेनज़ीर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की यूनिवर्सिटी है, जहाँ मुझे हरासमेंट किया गया और जहाँ मुझे मारा गया। हॉस्टल में मैं रहती हूँ, हॉस्टलर हूँ। 3 औरतें आई मेरे रूम पर, मुझे मारा, मेरा गला दबाया। जब मैं चीखी चिल्लाई तो मेरा मुंह बंद किया। जब मैं वहां से छुड़वा के मैं भागने लगी तो मुझे घसीटा गया और मुझे बोला, अगर तुम गुलाम मुस्तफा राजपूत की बात नहीं मानोगी, नहीं रखोगी, तो तुम्हें भी नायला रिंद, निम्रता, नौशीन की तरह फांसी पे लटका के बोलेंगे परवीन रिंद ने खुदकुशी की। हम स्टूडेंट्स खुदकुशी नहीं करते, हमें मारा जाता है और बोला जाता है हमने खुदकुशी की। हमें हरासमेंट किया जाता है, हमें ब्लैकमेल किया जाता है। कभी अगर हम उनके खिलाफ आवाज उठाते हैं तो हमें बोलते हैं आपको सप्ली लगाई जाएगी, आपकी एडमिशन कैंसिल की जाएगी। जब मैं बाहर निकली, मैडम असरा विजिट में मौजूद थी, मैडम असरा बेगम मिनिस्टर साहिबा मौजूद थी। लतीफ हॉल के बाहर मैं नंगे पांव भागती, मैं लतीफ हॉल के बाहर जब मैडम अजरा मिनिस्टर जो थी हेल्प थी, वहां पे मैंने उसको बोला, मैम देखें मुझे मारे, मुझे बचाओ, मुझे मार रहे। मैं रोई, मैं चिल्लाई। उस वक्त मेरी जो कंडीशन थी, ना मेरे सर के ऊपर आसमान, ना पांव नीचे जमीन थी। उस टाइम मुझे मैडम ने बोला, बेटा आप बैठो, कौन मार रहा है आपको? मैंने नाम अनाउंस किया। मैडम ने बोला, आप बेटा बैठो, आपके साथ इंसाफ होगा। 3 घंटे गुजर गए, मैं बाहर बैठी थी, मैडम अंदर ऑफिस में थी। मुझे ना अंदर बुलाया, ना मुझसे पूछा, ना मेरे सर पे हाथ रखा। उसके बाद जब मैडम बाहर आई, मैं भाग के मैं उसकी तरफ भागी, मैंने हाथ जोड़े। मैडम ने बोला, आपका इंसाफ हो गया। वाइस चांसलर गुलशन मेमन वहां पे मौजूद थे, उसने मेरी हालत देखी। जो भी स्टाफ थे, सारों ने मेरी हालत देखी। वाइस चांसलर में बोलने लगे, ये कोई बड़ी बात नहीं बेटा। जब मैं शहीद बेनज़ीर भुट्टो की यूनिवर्सिटी में मारी जाती, लटकाई जाती और न्यूज में आता, तस्वीरें खींची जाती, वीडियो बनाई जाती और बोला जाता परवीन रिंद ने खुदकुशी की, तब वाइस चांसलर बोलते कि हाँ हमारी यूनिवर्सिटी में बड़ी बात हो गई। लेकिन अभी तक फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम 12 घंटे हमने एहतजाज किया था, धरना लगाया था जो नवाबशाह में। कोई नुमाइंदा हमारे पास यूनिवर्सिटी की तरफ से नहीं आया, कोई भी नहीं आया, ना किसी ने हमसे बात की, ना कुछ। ये पाकिस्तानी भाई बहनों मेरे साथ थे, जो सिंध के, जो मेरे साथ खड़े थे। सोशल मीडिया, पाकिस्तान की पूरी मीडिया मेरे साथ खड़ी थी, लेकिन और कोई भी नहीं आया। मैंने जब अपने चाचा साईं को मैंने कॉल की, तब मेरे चाचा साईं ने ये सोच के कदम आगे बढ़ाया, आज मेरी बेटी के साथ हुआ है, कल शायद किसी और की बेटी के साथ होता होगा या अभी तक हो रहा है। अगर हम इस खिलाफ एक्शन नहीं उठाएंगे, शायद वो बच्चियां भी हरासमेंट होती रहेंगी और सिंध की और बच्चियों को भी हरासमेंट किया जाएगा और पंखे में लटका के बोला जाएगा इन्होंने खुदकुशी की। धरने में बैठी थी, लेकिन मेरे पास कोई नहीं आया, किसी ने, मैं पुकारती रही, रोती रही। 12 घंटे के बाद जो है FIR दर्ज हुई, वो भी उनके मर्जी के मुताबिक। उसके बाद अभी तक जो है चालान पेश नहीं किया गया, उसके बाद मैं फिर भी चक्कर काटती रही, मैंने कहा चालान तो हमारे
हमारा पेश करें जिससे हम केस को आगे बढ़ा सकें। मुझे एक अल्लाह पे और दूसरा कोर्ट अदालतों पे मुझे यकीन है मुझे इंसाफ दिलाएगी। चीफ जस्टिस साहब का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने सोमोटो नोटिस निकाला। चीफ जस्टिस साहब का मैं और शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने हुक्म दिया दूसरी बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ दिया तालीम हासिल करने के लिए। आज अलमास भान अपने घर बैठी है, वो भी एक सिंध यूनिवर्सिटी की बच्ची थी जिसको हरासमेंट किया गया था, वाइस चांसलर ने शायद हरासमेंट किया था। वो अपने घर बैठी है, वो तालीम से महरूम हो गई। मैं अपने घर बैठी हूँ, मैं तालीम से महरूम हूँ। हम औरतें, हम बच्चियां, हम माएँ बहनों को हक नहीं अपना राइट लेने का? हमको क्या हक नहीं आवाज उठाने का? मेरी माँ से अभी पूछिए आप जो शुगर की और डायबिटीज की मरीज है, उस बाप से पूछे जो मजदूर है। इतने पैसे मैंने करके फिर मैंने पढ़ाई एजुकेशन स्टार्ट की, उसके बाद जो जालिमों ने वहां जो जालिम अपनी एक प्रॉपर्टी समझ के हमें हरासमेंट करते हैं ना, आप उनसे तो कोई नहीं पूछता कि भाई आप बच्चियों को क्यों हरासमेंट कर रहे हो, आप जो बच्चियों को ब्लैकमेल कर रहे हो क्यों कर रहे हो, किस वजह से कर रहे हो। वाइस चांसलर गुलशन मेमन का जो हॉस्टल से सीधा उन्होंने दरवाजा बनाया जो हॉस्टल से सीधा जा रहा है उनके घर तक, क्यों बनाया, किस वजह से बना? भाई गर्ल्स हॉस्टल है ना, क्यों बनाए, किस वजह, इससे क्या मुराद है? क्योंकि वो उनके साथ मिले हुए हैं। और वो औरतें जो मुझे बार बार बोल रही थी क्या करोगी तुम, क्या कर सकती हो, वीसी के पास जाओगी, जाओ तुम वीसी के पास। उस दिन जब मेरी कॉल मेरे घर गई तो उस दिन पूछे उस माँ से उसके दिल पे क्या गुजरता होगा, पूछे उस दिन उस बाप से उसके दिल पे क्या गुजरता होगा जिन्होंने ख्वाबों की एक ताबीर बना के मुझे यूनिवर्सिटी में छोड़ा और बोला हमारी बेटी, हमारी बच्ची मरीजों की खिदमत करेगी, गरीब मरीजों की खिदमत करेगी। मैंने जो ये कोट पहना था ना, मैंने इस वजह से पहना था क्योंकि मैं उन मुस्लिम जो गरीब है जिनको कोई नहीं देखता, मैं उनकी खिदमत करूंगी। आज ये कोट, ये कफन है मेरा, जो मुझे डेली ब्लैकमेल हरासमेंट, जो मुझे डेली ब्लैकमेल करे, बोले आपको मारा जाएगा, आप कैसे हाथ उठाओ आपको मारा जाएगा, जो मेरे पेरेंट्स को बोले आपको मारा जाएगा, किसी रोड किसी सड़क पे आपको मारा जाएगा। मारे तो बेशक मारे, मैं नहीं डरती किसी से, मारे बेशक मारे। ये जो है ना को पनिश नहीं करेंगे, ये हैरिसर को पनिश करना बहुत जरूरी है। ये जो अप्रैल है ना, ये मेरा कफन है। जब मैं निकलती हूँ घर से बाहर तो माँ के मैं पाँव में किस करके निकलती, बोलती हूँ माँ मैं जब मर जाऊँ ना तुम रोना मत, तुम उस टाइम ये कहना मेरी बच्ची शहीद हुई, और उस टाइम ये कहना कि मेरी बच्ची ने इंसाफ के लिए और दूसरी बच्चियों को हरासमेंट से बचाने के लिए शहीद हुई। इंशाल्लाह मैं आप सबको भी हाथ जोड़ के जो भी बैठे हैं मैं रिक्वेस्ट करूंगी, आज आपकी बेटी, आपकी बहन बाहर खड़ी है, निकलिए आप उसको सपोर्ट करें, दूसरी बच्चियों को हरासमेंट से बचाएं जो वो अपने माँ बाप को भी नहीं बता सकती। और मुझे इंसाफ दिलाए, उस बच्चियों को भी इंसाफ दिलाए। पूछे उनके बाप से जिसने अपनी बच्ची को लटकता हुआ पंखे से नीचे उतारा होगा, पूछे उस नौशीन के बाप से, मेरी बहन नौशीन के बाप से जिसने उसने अपनी बच्ची को हाथ में लेकर घर लाश लेके गया। पूछे आप उस माँ से जिसकी एक बेटी थी, मैं भी एक बेटी हूँ अपनी माँ की, सबसे बड़ी बात मैं बताऊं, मैं एक बेटी हूँ अपनी माँ की। निम्रता जो थी वो भी एक बेटी थी अपनी माँ की, वो ख्वाबों की माला थी
के फिर बोलते हैं इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। निम्रता चली गई, नौशी चली गई, नालारिन चली गई, और शायद कल अगर मैं नहीं बचती तो शायद मेरे लिए भी यही पढ़ा जाता और बोला जाता कि परवीन रिद चली गई, और शायद फिर वाइस चांसलर गुलशन मेमू बोलता कि ये बड़ी अफसोस की बात है, ये बड़ा वाकया है। अभी तक मेरा चालान जमा नहीं हुआ। क्या मैं पूछ सकती मेरा कसूर क्या है? क्या मैं औरत हूँ? मैं बेटी हूँ, मैं बहन हूँ, मैंने तालीम हासिल की। क्या मैं एक गरीब हूँ? क्या मैं मजदूर की बेटी हूँ इस वजह से? क्या मुझे कोई हक नहीं है पढ़ने का? क्या मेरे ख्वाब नहीं हो सकते? शायद मेरे माँ बाप ने मेरे ख्वाब देखे थे इस टूटने की वजह से। परवीन, आप बहुत बहादुर हैं, हम सब आपके साथ खड़े हैं। मैं चाहती हूँ